Good morning, 10th class. So class, we were on chapter number 1 of geography, resource and development, and we have already completed the major part of the chapter, जहाँ पे हमने why is resource important, what is it, resource planning क्यों जरूरी है. Then we have also done about the various classification of resources. किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे करते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी, ownership and on the status of development. Then हमने ये भी कर लिया था कि how now people have understood that we have actually overused or used the resources without thinking, because of which उनकी scarcity आ रही है. So एक international awareness हो गई है that what should be done to conserve these resources. And then this is what we saw कि कैसे what is Agenda 21, कैसे basically there were various meetings that were being held, for example जो ब्राजील में हुई थी 1992 में regarding sustainable development and taking care of our resources as well as taking into consideration the sustainable development. So उसके बाद हमने कर लिया था कि among the one of the most important resource जो है that is the land resources. So we basically started with the land resources and we did what is the land utilization in India, and then also we did about the land use pattern in India. And towards our last class we were talking about the land degradation and the land conservation. What are the various factors responsible for the degradation of land, and then what are the conservation steps that should be taken. Okay, so इससे related let us proceed with our topic. So first of all, we know that resources are really important, and specifically अगर हम बात करें in terms of land, it is something which provides us all the basic needs. Specifically अगर देखें तो 95% of हमारी जो basic needs है of food, shelter and clothing, this is something which is obtained from the land itself. So land is really important, and we need to understand this that human activities जो हैं उनके कारण land degradation बहुत ज़्यादा हो गया है, and इतना ज़्यादा हो गया कि now we understand that we are finding it difficult to fulfill our basic needs, which was earlier very easily provided to us through land. तो हमने लैंड को इस तरीके से यूज किया है कि उसका डिग्रेडेशन हो गया है, जो क्वालिटी है लैंड की वो रिड्यूस हो गई. ऑलरेडी लिमिटेड तो था ही लैंड, बट उसके साथ साथ हमने उसकी जो क्वालिटी है वो भी एकदम समवेयर डिग्रेड कर दी है. अगर हम देखें एट प्रेजेंट अराउंड 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो हमारे इंडिया का लैंड है दैट इज ऑलरेडी डिग्रेडेड. इसमें से 28% जो है इट बिलोंग्स टू फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी जो एरिया फॉरेस्ट के थे समवेयर वो डिग्रेड हो गए. देन 56% जो है वाटर इरोडेड एरिया, यानी इरोजन जो वाटर के थ्रू हुआ है उसके कारण वो डिग्रेड हो गए. देन उसके बाद सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स जो हैं उनके कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है. मेजरली अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो जो डिफॉरेस्टेशन है इट इज वन ऑफ द यू कैन से द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अगर हम देखें तो डिग्रेडेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे इन ग्रेट नंबर्स डिफॉरेस्टेशन है. ऑब्वियसली हमें पता है व्हेन वी कट डाउन दी फॉरेस्ट तो क्या होता है, फॉरेस्ट का टॉप मोस्ट जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाएगा बाय द इरोजन, मे बी थ्रू विंड और सॉइल, जिसके कारण ऑब्वियसली क्या होगा लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा. सो डिफॉरेस्टेशन. ओवरग्रेजिंग क्या होता है, ओवरग्रेजिंग व्हेन जो पेस्टोरलिस्ट है या हर्डर्स है वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाने के लिए लेके जा रहे हैं एंड दे आर नॉट कीपिंग ट्रैक की ग्रेजिंग कैसे हो रही है. अगर पूरे लैंड के ऊपर से पूरा ही कवर हट गया तो ऑब्वियसली अगेन इरोजन होगी. So there needs to be a kind of to keep a track कि किस तरीके से grazing हो रही है, because see what happens कि जब animals graze करते हैं they are just taking off the grasses suppose of the land, तो along with the roots वो चली जाती हैं, grasses they consume, तो land जो है again without cover हो जाएगा.
तो उसमें आराम से डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि कीप अ गैप बिटवीन द एरियाज विच आर डिग्रेडेड एंड टोटली अनकवर्ड ना हो जाए। माइनिंग और क्वेरिंग जो है उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो माइनिंग साइट्स है उनको क्या करते हैं, जैसे जो भी सपोज मे बी इट इज अ बिग इंडस्ट्री और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उन्होंने माइनिंग कर ली और माइनिंग के टाइम ऑब्वियसली जो एक्सकवेशन की थी इतनी डीप स्कार्स हो गए, इतने बड़े गड्ढे जैसे हो गए हैं लैंड पे, और उसको एज इट इज वो लोग आफ्टर दे आर डन विद देयर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द मेटल और मिनरल वो ऐसे ही चले जाते हैं, लिविंग दैट लैंड लाइक दैट ओनली। ऑब्वियसली उस लैंड की क्या हो जाएगी, उसके कारण इरोजन होगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी और लैंड जो है वो डिग्रेड ही हो जाएगा। सो स्पेसिफिकली अगर हम देखें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो जगह है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ। मतलब डिफॉरेस्टेशन इसीलिए की गई है क्योंकि वहां पे माइनिंग करनी थी, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि अगेन डिफॉरेस्टेशन भी हो गया और माइनिंग के बाद ऐसे ही लैंड को छोड़ दिया, तो फिर लैंड डिग्रेडेशन होनी ही है। अगर हम स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब की बात करें तो हम देखेंगे इनमें मेन रीजन डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे की जाती है विदाउट कीपिंग अ ट्रैक की लैंड कवर्ड है या अनकवर्ड ही रह गया पूरा विदाउट एनी वेजिटेशन। देन नीडलेस टू से पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये ऐसी जगह है जहाँ पे ओवर इरिगेशन होता है। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर इकट्ठा हो जाता है एंड धीरे धीरे उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली उसमें व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर तो हम उसको सलाइन वाटर बोल देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉगिंग ऑफ वाटर एंड द अदर काइंड ऑफ थिंग्स, सॉइल से जो है नमक ऊपर की तरफ आ जाता है एंड इसके साथ साथ इफ यू नो कि वहां पे टुवर्ड्स दीज एरियाज पंजाब हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब हुए थे, इसके कारण देन द सॉइल आल्सो अलोंग विद सैलिनिटी तो बढ़ती है, अल्कलाइन भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट पीएच लेवल एंड ऑल एंड मिक्सिंग ऑफ दीज केमिकल्स। सो ऑब्वियसली इससे क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। अलोंग विद दिस एक और जो मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का वो ये है, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, जनरली जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की जरूरत होती है तो उसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। एंड सोप स्टोन जो है वो सेरामिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जब इनको ग्राइंड किया जाता है तो इनके बहुत फाइन जो पार्टिकल्स है वो एयर में रिलीज हो जाते हैं एंड देन फाइनली वो जाके जब सेटल होते हैं ऑन द ग्राउंड तो ये सॉइल के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, पतली सी लेयर, और ये जो लेयर है ये वाटर को जब ऊपर से पानी गिरता है ना उसको सॉइल के अंदर पर्कुलेट नहीं होने देती, इनफिल्ट्रेट नहीं होने देती, अंदर नहीं जाने देती, जिसके कारण क्या होता है वो सॉइल जो है वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाती है और ऊपर से वो लेयर है केमिकल की तो ऑलरेडी वैसे भी इनफर्टाइल हो गई है। सो इसीलिए लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कुछ एरियाज हम बोल देते हैं कि नेचुरली है, मे बी जैसे हमने पहले पढ़ा था वाटर इरोडेड एरिया है या कुछ ऐसा नेचुरल रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन के, बट उसके अलावा ह्यूमन रीजंस बहुत ज्यादा है। हमने डिटेल में पढ़ लिया है अबाउट ओवर ग्रेजिंग, हमने माइनिंग एंड क्वेरिंग का रीजन पढ़ लिया, हमने डिफॉरेस्टेशन का पढ़ लिया है एंड हमने केमिकल और इन फर्टिलाइजर या ओवर यूज ऑफ इरिगेशन का भी कर लिया है and then the mineral processing industry. So now that we know कि इतना ज्यादा pollution हो गया है एंड इतना ज्यादा लैंड डिग्रेड हो गया थ्रू वेरियस थिंग्स, और इंडस्ट्री में तो इनके साथ साथ क्या होता है जो उनके वेस्ट मटेरियल है वो डंप किए जाते हैं, इफ यू ऑल नो, इनटू लैंड एंड आल्सो इनटू वाटर। सो वैसे तो देयर इज अ रूल दैट दे शुड बी ट्रीटेड एंड देन डंप्ड, बट हु एक्चुअली केयर्स?
अब ये चीजें रूल थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट अदरवाइज पहले बिना उनको ट्रीट किए जब आप लैंड में या वाटर में डंप करते हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लैंड पॉल्यूशन एंड water pollution. So these are the problems that we see across when we talk about land degradation. You can see through these pictures ki kaise we are majorly responsible in polluting our environment and degrading our land and water resources. So अब जब हमें problem पता चल गई है, now we know that it is really necessary to conserve our land. We need to understand obviously कि this is also a very important thing that is to be done. So अगर हम देखें afforestation and proper management of grazing अगर की जाए तभी क्या होगा, पहला स्टेप होगा लैंड डिग्रेडेशन रोकने का और लैंड कंजर्वेशन का. सो टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें पता है डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन. जो ओवर ग्रेजिंग होता है उसको रोकने के लिए ऑब्वियसली उस पर कंट्रोल करना चाहिए. शेल्टर बेल्स हमें प्लांट करने चाहिए. ये जो शेल्टर बेल्स है ये क्या है, दी शेल्टर बेल्स आर समवेयर, जैसे कॉर्नर्स पे एक प्लांट्स का रो लगा देते हैं जिससे क्या हो जाता है, ऑब्वियसली जब इरोजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इसके कारण. देन ओवर ग्रेजिंग जो है उसको हमें कंट्रोल करना है. सैंड ड्यून्स जो है वो अचानक से, बिकॉज वी नो कि राजस्थान में सैंड ड्यून्स कितने ज्यादा होते हैं और तेज अगर विंड आई तो all of the sand dunes get blown away and then they go and settle to some other area. जहां पे अगर बाई चांस एग्रीकल्चर की हुई हो तो उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाए. एंड समवेयर हमें पता है इरोजन होगी तो लैंड डिग्रेडेशन होगा ही होगा. तो इन सब को रोकने के लिए थॉर्नी बुशेस लगाना इन अ रो और मे बी इन द वे, ताकि चीजों को रोका जा सके. ओके, और लैंड डिग्रेडेशन क्या हो, रिड्यूस हो जाए. इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, एंड देन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्पोज ऑफ करना. ओके, दीज ऑल नीड्स टू बी टेकन केयर. तभी क्या होगा, जो हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है वो कंजर्व हो सकेगा. एटलीस्ट उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी इन द काइंड ऑफ यू कैन से न्यूट्रिशनल लेवल या फर्टिलिटी लेवल ऑफ दैट लैंड. सो बेसिक स्टेप्स है, एफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट करना है ग्रेजिंग, शेल्टर बेल्स लगाने हैं, हमें थॉर्नी बुशेस लगाने हैं ताकि सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन हो, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है माइनिंग एक्टिविटीज, उनको लैंड वापस से सही पोजीशन पे छोड़ के ही जाना चाहिए. इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है ट्रीट करके, ताकि वो लैंड और वाटर का डिग्रेडेशन ना हो. ओके, एंड इन सारी चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे देन ओनली समथिंग कैन बी डन रिगार्डिंग trying to stop land degradation and trying to bring some improvement. Okay, so this is about the land use pattern, land degradation and land conservation. Now when we talk about land, the first important thing that comes in our mind is soil. So soil is again one of the most important resource. Soil बहुत important resource है हमारे लिए. Along with that soil जो है दो renewable resource है, but इसके साथ we know that again इसका भी we people are responsible in degrading it to a great amount. This is medium, ये एक बहुत important resource है हमारे लिए because यही है जहाँ पे plant grow करता है, जहाँ पे different type of living organisms grow करते हैं. ये जो soil है इसको हम इसलिए living system बोलते हैं because it provides all the basic things to the living structure. It actually takes millions of years to form. A few centimeters of you can say soil, मतलब कुछ सेंटीमीटर्स डेप्थ ऑफ सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. एंड देन अब ये जो सॉइल है ये फॉर्म कैसे होती है,
We'll first talk about how the soil is formed, what are its important characteristics. We'll study about various kind of soils, alluvial soil, black soil. Then we'll study about the red yellow soil, laterite soil, arid soil, the forest soil. Last में हम soil erosion and soil conservation के बारे में बात करेंगे. But to start with, soil form कैसे होता है? Obviously relief, parent rock, जिसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं, क्लाइमेट जहाँ पे वो फॉर्म हुआ है, जहाँ पे फॉर्म हुआ है वहां पे वेजिटेशन कैसी है, और बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वहां पे वो किस टाइप के हैं, उससे डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल कैसी है. ओके, सो इफ यू क्लास know in detail, or I suppose this is something that we have studied in our junior classes, but maybe we have because lost the track, continuity नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा skip हो गया हो. So let me just repeat. Soil form कैसे होता है? सबसे नीचे होते हैं unweathered parent rock, as you can see in this picture. उसके बाद होता है हमारा जो वेदर्ड रॉक, यानी कि जब रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. फिर सब सॉइल होती है जिसमें वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट और क्ले होता है. और फाइनली हमारी टॉप सॉइल बनती है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर और बाकी चीजें करते हैं. ठीक है, दिस होल इज कॉल्ड एज द सॉइल प्रोफाइल. सो बेसिकली ये जो जिस लेयर्स में डिवाइडेड है, हाउ दे आर फॉर्म इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द सॉइल प्रोफाइल. ओके, now along with this, now when I said that certain things are responsible for the type of soils that are formed, relief यानी कैसी एरिया है, जैसे माउंटेनियस एरिया है, जैसे प्लेन एरिया, तो वहां पे जो सॉइल की लेयर है वो बहुत थिक होगी. पेरेंट रॉक तो होगा ही क्योंकि उसी से बनी है जो सॉइल है. जिस क्लाइमेट में फॉर्म हुआ है, जो वेजिटेशन है और बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम कब फॉर्म हुए हैं, वेजिटेशन वहां पे कौन सी थी, उसमें क्या मिनरल कंटेंट थे, वो सब डिसाइड करता है कि सॉइल कैसी थी. इसके अलावा दूसरी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो है टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर. इन्हीं से तो वेदरिंग होती है, और वेदरिंग होके ही तो रॉक जो है वो सॉइल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है. इसके अलावा केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो सॉइल में होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ हीट एंड कोल्ड, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है. एंड देन ऑर्गेनिक मटीरियल यानी कि ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटीरियल में जब हम ह्यूमस की बात करते हैं, तो जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी जो रिमेन्स है, इनसे जो सॉइल में मैन्योर या इनसे जो सॉइल में मिनरल कंटेंट ऐड होता है, उससे भी तो सॉइल की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है. सो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल इन द टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फॉर्म्ड, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इन ग्रेट टर्म्स इन बेसिकली किस टाइप की सॉइल फॉर्म. ओके, बाकी जब हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स सम के बेसिस पे करते हैं. सॉइल फॉर्मेशन कैसी थी, सॉइल का कलर कैसे था, फॉर एग्जांपल रेड और येलो सॉइल, सॉइल की थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, फाइन है या रफ है, एज क्या है, जैसे हम भंगर और खद्दर को करते हैं ओल्ड अलूवियल, न्यू अलूवियल, केमिकल उसमें फॉस्फोरस कंटेंट है या पोटेशियम कंटेंट है, उस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर कैसा है, क्या उसके उसमें फिजिकल उसके स्ट्रक्चर्स कैसे है, ये सारी चीजें. ठीक है, देन उसके अलावा जो किस टाइप से ये फॉर्म हुआ था, क्या टाइम पीरियड था, ये सारी की सारी चीजों के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं. और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत सारे वेजिटेशन है, और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के. इसीलिए हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल भी इंडिया में बहुत सारे हैं. सो स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे अलूवियल सॉइल इन डिटेल, देन वी विल स्टडी अबाउट द ब्लैक सॉइल, then we will study about the red and the yellow soil, then we will study about the laterite soil, उसके बाद हम forest soil के बारे में पढ़ेंगे, arid soil, and then finally as I said for soil erosion and conservation. Okay, so with this we'll be able to complete our chapter. So this is it for today.
and we'll continue with this chapter and try to wind it off in our next class. So this is it for today. Now meet you all in the next class.